Hello students, you see we are discussing dissolution of partnership firm. I have taken today some new situations which the partners take into account while closing the books of their firms. All these situations I have taken in a specific problem which I am going to discuss with you. Now here is the problem before you. Let us read this problem thoroughly. There are two partners A and B. They are sharing profits in the ratio of 3:2. This is their balance sheet. A, B, their capital is 40,000 and 60,000. Creditors are 30,000. Workers' compensation fund is 40,000. Bank loan is 20,000 and A's wife's loan is 10,000. Earlier also we took A's wife's loan, partner's wife's loan, but this one is different from that one. So here we have machine, debtors, stock and bank. Their figures are given, the total is 2 lakhs each side. That firm is dissolved. Close the books of the firm. Now these are the 7 points. Many of them are new. Realization expenses 2,000. Now it is not been given who has paid it and who is going to bear it. So whenever there is expression is straightaway given like this, these expenses are paid by the firm and also borne by the firm. They are paid by the firm and also borne by the firm. So that is realization expenses rupees 2,000. Now second is half of the stock is taken over by A at 10% less. Now what is the stock? This is stock of 40,000. What is it half? 20,000. This 20,000 has been taken over by A. A has taken over this stock at 10% less. If it is 20,000, what is 10% less? The 10% less will be 20,000 minus 2,000. That means A has taken half the stock at a special valuation of 18,000. So that is half stock is taken over by A at 10%. What happened to the remaining? Remaining stock is given to creditors. Here are the creditors. How much are the creditors? 30,000. The creditors are 30,000. The remaining stock of 20,000 is given to the creditors in full settlement. How much was to be paid to the creditors? 30,000. But they have been given a stock of 20,000 and we have told the creditors, look here creditors, nothing more will be paid to you, take over this stock and go away. So that is the treatment of stock, which is a special case in this new problem that I am discussing with you. Then we have third and fourth. These third and fourth are two new points regarding unrecorded asset and unrecorded liability. Try to understand carefully. This is a very important issue which sometimes the students are confused, but there is no reason for any confusion. An unrecorded asset of 24,000. This was not recorded on the asset side. On the asset side it is not there, or let us say it is recorded here but it is not visible. It is recorded at 0. It is recorded at 0, you can say this, but its value is 24,000. This is given to bank loan. This is bank loan is 20,000. So we give this entire unrecorded asset to the bank. बैंक को दे दिया, भाई बैंकर ये ले लो, एक हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 24,000 है, आपको हमने देने 20,000. तो बैंक कहने लगे ओके, बैंक लोन को दे दिया, बैंक पेज द बैलेंस, बैंक ने 4,000 हमें वापस कर दिए. एसेट कितने का था? 24 का. बैंक के कितने देने थे? 20. तो बैंक ने इसमें से 20 काट के 4,000 हमें वापस कर दिए. ये क्लियरली लिखा हुआ है.
और अगर ऐसे लिखा हुआ होता इन फुल सेटलमेंट जैसे यहाँ लिखा था क्रेडिटर्स के, फिर बैंक ने कुछ वापस ही नहीं करना था. नाउ द बैंक पेज अस बैक हाउ मच? 4,000. Now liability. There is a liability which is not recorded or it is recorded at 0. This liability is recorded here at 0, but this liability is for 15,000. It is not recorded, but we have to pay it. So this is for 50,000. This liability is paid by B. ये liability जो थी ये B ने अपने पास से पैसे दे दिए. On behalf of the firm ये लिखा हुआ on behalf of the firm. On behalf of the firm का मतलब क्या है? भाई फर्म ने कहा कि मिस्टर बी आप पैसे दे दो, उसके बाद फर्म आपको पे कर देगी. ये ध्यान रखना है, ये बी ने पैसे दिए हैं फर्म की तरफ से और फर्म ने बी को पैसे दे देने हैं और फाइनल सेटलमेंट से पहले देने हैं. ओके ये पहले क्यों देना है? हो सकता है फाइनल सेटलमेंट का टाइम पैसा ना बचे, सो ये पैसे उनको पहले देने हैं. सो ये दो स्पेशल आइटम्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. देन वी हैव अनदर नंबर 5, ए टेक्स ओवर हिज वाइफ्स लोन. ये है वाइफ्स लोन और ये ए कहता है मेरी पत्नी का लोन मैं अपने आप पे कर दूंगा. तो ठीक है, लेकिन ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ये एज वाइफ्स लोन हैज बीन टेकन ओवर बाय ए और उसके बाद फर्म इसके पैसे देगी. बिकॉज जिस तरह से ये था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हैज बीन टेकन ओवर बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सिमिलरली ए टेक्स ओवर हिज वाइफ्स लोन. वी कैन से ऑन द प्रॉमिस दैट द फर्म हैज agreed to pay him the money after some time. ए को कहा गया कि इसके पैसे आपको मिल जाएंगे. ए टेक्स ओवर हिज वाइफ्स लोन बट ही विल गेट दिस मनी आफ्टर सम टाइम. नाउ वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम इज टू 42,000. हमारे पास फंड कितने का है? 40,000 का, लेकिन पैसे कितने देने पड़ गए? 42,000. 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़े. यू अंडरस्टैंड? सो ये भी एक नई सिचुएशन है. लास्ट टाइम वी डिड, अर्लियर वी डिड that the fund was 40,000, the claim is 35,000 or 36,000, less than the value. Now the claim is more than this figure. How it is to be treated you will see. And the last point is that स्टॉक का फैसला हो गया, ये दो रह गए. मशीन बेच दी गई, 70,000 की मशीन थी, ये 50,000 में बिकी. और डेटर्स थे 80,000. डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 10% लेस. 10% लेस कितने हो जाएंगे? 80 का 10% क्या होगा? 8,000. और 80,000 में से 8,000 अगर लेस कर दें तो 72,000 हमें डेटर्स के मिले. डेटर्स के कितने मिलेंगे हमें? 72,000. तो इस तरह से देखो, मशीन बिक गई, डेटर्स पैसे मिल गए, स्टॉक हमने बांट दिया, ये ले गया, कुछ बाकी बचा वो क्रेडिटर्स को दे दिया, बैंक में पैसे हमारे पास हैं, इसमें पैसे और जुड़ जाएंगे, मशीन वाले भी डेटर्स वाले भी पैसे जुड़ जाएंगे, इसमें से फिर हम पैसे पे करेंगे. जब हमने ये एज वाइफ्स लोन ए लेके गया है उसको पैसे देने हैं, इसी तरह और जिसको भी पैसे हमने देंगे वो बैंक अकाउंट में से जाएंगे. राइट इधर देखिए कैपिटल है ए, ये कैपिटल ए के अकाउंट में चले जाएगा, ये कैपिटल बी के अकाउंट में चले जाएगा. क्रेडिटर्स ये चले जाएंगे 30,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स अकाउंट में चले जाएंगे. वर्कर्स कंपनसेशन फंड 40,000 ये है वर्कर्स, इसके अगेंस्ट क्लेम है 42,000 का, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और इसके अगेंस्ट पेमेंट होगी 42,000. बैंक लोन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और 20,000 का है. इस 20,000 की सेटलमेंट हमने कैसे करी है? एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास पड़ा था, कितने का? 24,000 का, ये वाला इसको दिया बैंक लोन में. और वाइफ्स लोन ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और वहां से जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, कैश नहीं करेंगे, इट विल बी टेकन ओवर बाय बी. सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस अकाउंट. दिस शुड बी सॉल्व्ड. Here I am going to do it. The important thing is that
it should be systematically done. And please observe and watch how I am doing it. Follow the same process and you will find that you are able to solve this question correctly. Now, how it is to be done? First of all, what you have to do is you have to record all items in the balance sheet. Balance sheets की सारी items जो है वो record करो. कौन कौन सी है? एक तो ये है हमारे पास मशीन. ये मशीन रियलाइजेशन में ले जाओ, डेटर्स भी रियलाइजेशन में ले जाओ, और ये स्टॉक है ये भी रियलाइजेशन में ले जाओ. बैंक जो है ये बैंक अकाउंट में ले जाओ. तो चलो इनमें लिखें. ये हमारे पास बैंक है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस BD. और बैंक में कितने पैसे हैं? हमारे पास 10,000 पड़े हुए हैं पहले. ठीक है. और ये रियलाइजेशन अकाउंट है. इधर ले आइए क्या क्या चीज़? मशीन ले आइए. ये देखो इधर मशीन आ गई. फिर यहाँ डेटर्स आ गए और फिर यहाँ ये स्टॉक आ गया. This stock has come here. The amounts are, machine is 70,000, 80,000 and stock is 40,000. 70,000, 80,000 and 40,000. देखिए एसेट्स सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए. अब ये लायबिलिटी साइड. फर्स्ट इज एज कैपिटल. इनके कैपिटल अकाउंट में लिख दो इनके बैलेंस बाय बैलेंस BD. ये है 40,000 और ये है 60,000. तो हमने ये भी लिख दिए. नाउ क्रेडिटर्स, वर्कर्स, कंपनसेशन, चारों के चारों रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स. दूसरा है वर्कर्स कंपनसेशन फंड और तीसरा है हमारे पास बैंक लोन और चौथा है एज वाइफ लोन. ये चार है 30, 40, 20 and 10. This is 30, 40, 20 and 10,000. So look here, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स इस तरह से रिकॉर्ड कर लेनी है. पहला काम ये है, कोई आइटम बैलेंस शीट की बचनी नहीं चाहिए. और इसके बाद अब बैलेंस शीट की तरफ देखना नहीं है. अब सारा काम हमने करना है एक कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और ये 7 ट्रांजैक्शन. इधर एक एक को लेकर करते जाना बस. एंड रिमेंबर, अब जितनी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, जो भी एंट्री होगी, ये डबल एंट्री होगी. इसके एक बार डेबिट में आएगी, एक बार कोई भी आइटम एक बार नहीं आएगी. देखिए अब करते हैं इसमें. पहली आइटम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000. कितने हैं? 2000. ये कैसे रिकॉर्ड करने हैं? ये पहले तो इधर रियलाइजेशन अकाउंट में लिखने हैं और इधर लिखना है टू बैंक. ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस. कितने? 2000. और इसकी दूसरी एंट्री बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000. डन. हर एक आइटम 2 बार लिखी जाएगी. वंस इन द डेबिट, वंस इन द क्रेडिट. और हम टिक करते हैं इसको कि ये हमारा हो गया. अब आइए ये हाफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय ए. आधा स्टॉक
आधा स्टॉक देखो कितना है, ये रहा स्टॉक। आधा स्टॉक जो है ये किसने ले लिया? ए ने। किसने लिया? ए ने। किस प्राइस पर? 10% लेस। तो हम ये करते हैं यहां पर बाई ए, ये ए को दे दो, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक। ये कितने में लिया? 18,000 में। ठीक है, और हमारे पास ए का कैपिटल अकाउंट है इधर, ये रहा, तो इधर लिख दो इसमें टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, इधर लिख दो 18,000। देखिए डेबिट और क्रेडिट, ये आइटम और इधर ये आइटम डेबिट, वंस इन द क्रेडिट वन। जहां आपसे गलती हो गई ये तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। सेम अमाउंट 18, लेकिन ये आधा स्टॉक गया। व्हाट अबाउट द सेकंड हाफ? सेकंड इज 20,000. It is given to 20,000 is given to, how much is this? Second half of the stock is, remaining stock is given to creditors in full settlement. Remaining stock कौन सा था? Remaining stock था हमारा यहां पर 20 का। ये देखो 20 का स्टॉक इधर बचा हुआ है, और इधर क्रेडिटर्स कितने हैं? 30 के। ये स्टॉक हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। क्रेडिटर्स कितने के हैं? जरा समझ लो ध्यान से। 30 के क्रेडिटर हैं और 20 का स्टॉक लेके वो शांत हो गए। बोलो हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? टेल मी। क्रेडिटर्स आर 30,000 और हमारा स्टॉक कितने का है? 20 का, और वो 20 का स्टॉक हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। इसकी एंट्री आपने कोई करने की जरूरत नहीं है। ना तो हमने 20 का स्टॉक बेचना है और ना क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। क्यों? ये स्टॉक क्रेडिटर्स को दे दिया हमने। सो दिस, ये सामने आमने बैठे हैं, ये क्रेडिटर्स और इधर 20 का स्टॉक, ये दोनों अपने आप ही सेटल हो जाएंगे। अगर इस स्टॉक को हम बेचते, अगर इस स्टॉक को हम बेचते और बेचने के बाद क्रेडिटर्स को पे करते तो वो तो क्रॉस हो जाता। देखो एक और समझाते हैं। सपोज करो हम इस स्टॉक को बेचते हैं, ये बेचा बाई कैश, कितने का? 20 का, और यही 20 हमने इन क्रेडिटर्स को पे कर दिए। इधर लिख देते टू कैश 20 का। तो ये देखो ये दोनों एंट्री आपस में कट गई, तो लिखने का फायदा ही नहीं हुआ हमें। इधर लिखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज इधर पैसे आएंगे स्टॉक बेचने के, इधर कर देंगे। इसलिए व्हाट इज डन इज कि जब क्रेडिटर्स को हमने कोई एसेट देना है, क्रेडिटर्स को कुछ एसेट देना है इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट लिखा है भाई क्रेडिटर्स तुम्हें और कुछ नहीं मिलना है, ये 20 का बचा हुआ स्टॉक ले जाओ, दैट्स ऑल। हमें इसमें गेन हो गया। कितने का गेन हुआ? 10,000 का। लुक हियर, ये क्रेडिट साइड 30 है, डेबिट कितनी है? 20। तो क्रेडिट साइड देखो अपने आप 10,000 से बढ़ गई, ये हमें गेन हो गया। और सपोज करो क्रेडिटर्स कहते हैं ना जी हमें ऐसे नहीं करना, आप हमें 20 का स्टॉक दे रहे हो, हमने तो आपसे 30 लेने हैं, आप हमारे बाकी के 10,000 दो कैश। तो हम क्या करेंगे इन दैट केस? ये 30, 20 का स्टॉक चला गया, बाकी यहां पर टू बैंक लिख के 10,000 और पे कर देंगे उनको। तो क्रेडिटर के पास कितने देने थे? 30। इधर से ये स्टॉक चला गया, यहां से 10 और चले जाए तो 30 के पेमेंट। अगर उनको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, फुल सेटलमेंट तो कुछ नहीं देना, और दैट्स नॉट